बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन आज का ऑफलाइन क्लास है फिजिकल एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ एथलेटिक्स। अगर हम हिस्ट्री ऑफ एथलेटिक्स की बात करेंगे तो थोड़ा सा हिस्ट्री ऑफ सिमिलरली मतलब लाइक इन एंशिएंट टाइम्स, अगर हम एंशिएंट लोगों की ज़िंदगी देखेंगे, they were used the different kind of activities. पुराने ज़माने के लोग different kind of athletic people, मतलब neolithic, paleolithic या civilized, different kind of civilizations has found that the peoples of these civilization use a different kind of activity for their survival. जैसे कि running, jumping, pushing, pulling, throwing has been मतलब very old activities of a man. Therefore these activities were very necessary for outdoor living, indoor fighting with the animals, fighting with the enemies, fighting with the मतलब in order to have food, जैसे hunting के लिए go soya ki the history of this athletics is very old. Track and field event is a very old, and its activities running, jumping, throwing are now in modern form through the planning and through proper rules and regulations. पहले ज़माने से ही रनिंग जंपिंग इट वाज एन एक्टिविटी फॉर ए पर्सन फॉर देयर सर्वाइवल के लिए, बट टुडे अगर हम देखेंगे कि मॉडर्न ट्रैक एंड फील्ड एक्टिविटीज में क्या होता है कि देयर आर सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस. विद द पैसेज ऑफ टाइम देयर वाज एन improvement takes place according to needs of the time. Thus track and field events today are much more refined and organized from the ancient activities of the man. Similarly अगर हम ट्रैक एंड फील्ड की बात करेंगे तो ग्रीक हैज वेरी मच इम्पोर्टेंट. If we have to realize the importance of the track and field event, we have to realize the history, we have to realize the importance of Greek. क्योंकि Greeks has given us the modern Olympics. The idea of modern Olympics was from the Greek. क्योंकि ग्रीक में एक ऐसा इवेंट हुआ करता था जिसका नाम था मतलब क्या ओलंपिया. जो ओलंपिया एक विलेज था वहाँ पे एक इवेंट ऐसा हुआ करता. दैट वाज स्टार्टेड इन 776 BC में, जिसको हम एंशिएंट ओलंपिक्स के नाम से भी जाना जाता है. मतलब दोज एंशिएंट गेम्स वी आर मच मोर फैमिलियर इन द ग्रीक्स एंड एथेंस एंड नियर बाय स्टेट्स. बट अगर हम बात करेंगे कि मॉडर्न ओलंपिक्स की, द एंशिएंट गेम्स become the forerunners of this modern Olympic game. गोया कि the word athletics was used in the ancient Olympics, and the word athletics अगर हम बात करेंगे is a Greek word which has been derived from athlon, ATH. Athlon means to compete, and a person who take part in such a competition is known as athlete. Athlon or athletes is a term that has been derived from a Greek word, that is athlon. Means athlon से ये Greek हो गया, but athlon means the competition, and a person who took part in this such competition came to known as athlete. Although England, France, Germany encouraged track and field events, but the credit of reviving the ancient glory of these games goes to the Baron Pierre de Coubertin, a French nobleman who revived these Olympics and who revived these ancient athletic activities. मॉडर्न ओलंपिक को रिवाइव करने की वजह से, जब हमने मॉडर्न ओलंपिक रिवाइव किया, इससे क्या हो गया, एंशिएंट ओलंपिक्स को भी रिवाइव हो गए. जब वो एंशिएंट ओलंपिक्स रिवाइव हो गए तो उससे ट्रैक एंड फील्ड को क्रेडिट मिल गया. बट बैरन पेरारे क्यूबर्टन, जिसको बोलते हैं बैरन पेरारे डी क्यूबर्टन, इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स. It was because of his running efforts, because of his untiring efforts, that the modern Olympics were held in Athens, in Greece, in 1896. ट्रैक एंड फील्ड की जो अट्रैक्शन की बात करेंगे, ट्रैक एंड फील्ड हैज़ वेरी मच इम्पोर्टेंस इन ओलंपिक्स में जो मेन अट्रैक्शन होती है ओलंपिक इवेंट्स में, वो होते हैं ट्रैक एंड फील्ड.
apart from these competitions, there are other organizations apart from the Olympic organization of track and field events. इसके बगैर भी there are so many organ who look after the मतलब track and field activity. मतलब अगर इंडिया में बात करेंगे, इंडिया हैज इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन दैट वाज फॉर्मड इन 1927, बट a separate body is also popularizing, conducting track and field events. एक तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है 1927 में जिसका फॉर्मेट हो गया था, बट अपार्ट दिस द सेपरेट बॉडी इज ऑल्सो पॉपुलराइजिंग एंड इंकरेजिंग एंड कंडक्टिंग द डिफरेंट एथलेटिक एक्टिविटी, जिसका नाम है मैच फॉर एथलीट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया. That was founded in 1946 before independence. 1946 में इंडियन मैच फॉर एथलीट्स फेडरेशन. देयर आर सो मेनी फेडरेशंस, और भी फेडरेशंस है, जोनल, डिस्ट्रिक्ट, डिविजनल, स्टेट फेडरेशन. मगर जो मॉडर्न ओलंपिक्स है, जो एथलेटिक्स है, इट हैज इट्स ओन वे. अगर हम ट्रैक एंड फील्ड के इवेंट्स की बात करेंगे, देयर आर 5 ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स. 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है ट्रैक एंड फील्ड. पहला है रनिंग इवेंट्स जो मैंने लिखे है, दूसरा है जंपिंग इवेंट्स, तीसरा है थ्रोइंग इवेंट्स, चौथा है कंबाइंड इवेंट्स. नंबर 5 इज द वॉकिंग. पहले हम करेंगे बात रनिंग इवेंट्स. रनिंग इवेंट्स मीन इज द इवेंट्स ऑफ एथलेटिक्स. जो एथलेटिक्स में इवेंट्स है जिनमें रनिंग आती है, उसको क्या बोलते हैं? उसी को रनिंग इवेंट्स बोलते हैं. कितने रनिंग इवेंट्स है किसमें? हाउ मेनी रनिंग इवेंट्स आर इन एथलेटिक्स? देयर आर 14 रनिंग इवेंट्स होते हैं. कितने होते हैं? 14 रनिंग इवेंट्स होते हैं. पहले हम इवेंट्स की बात करेंगे. एक तो होता है 100 मीटर्स रेस. नंबर 2 होता है 200 मीटर्स रेस. 100 मीटर्स, 200 मीटर्स. नंबर 3 होता है 4. ये एथलेटिक एक्टिविटीज है, याद रख लेना. ये एथलेटिक एक्टिविटीज है, मीन दीज आर अंडर द एथलेटिक ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में इतने इवेंट्स होते हैं. 100 मीटर्स, 200 meters, 400 meters, 800 meters, 1500 meters, 5000 meters, 10,000 meters. These are known as, and 8 is marathon. These 8 events are running events, but these are for men's and women. Women's के लिए भी यही है, men's के लिए भी है. नंबर जो है that is the 100 meter hurdle race. 100 मीटर हर्डल रेस जो पे आप लिखा है 9th 100 मीटर हर्डल रेस इज स्पेशली फॉर वुमेन. 100 मीटर रेस इज ओनली फॉर वुमेन. एंड 110 मीटर जो 10th है, जो 10th पे आता है, 10th है, सीरियल नंबर 10. 110 meters is for men's and 100 meters for women's. Number 11 that is 400 hurdle meter race. हर्डल रेस क्या होते हैं? ये रेस ही होती है, बट देयर आर सम लिटिल जंप्स. इसमें जंप्स होते हैं. आफ्टर मतलब अगर 100 मीटर्स की रेस होगी, आफ्टर 13 meters distance there will be a hurdle, there will be a jump. After that, after a meter of from that very hurdle, after a gap of 12 meters there will be a hurdle. After a gap of 12 meters there go similarly. नंबर कितना था ये? 11 is the 400 meters. 400 meters में वुमेन्स के लिए भी है, मेन्स के लिए. ओनली स्पेसिफिक है 110 meters, दैट इज फॉर मेन्स एंड 100 फॉर वुमेन. उसके बाद आता है रिले रेस. रिले रेस मीन्स रेस, एक रेस होती है, इसे आगे मैं पढ़ाऊंगा फिर एक बार फिर. रिले रेस मीन्स दैट रेस इन विच देयर इज अ बैटन, एक छड़ी होती है दैट वी हैव टू पास. फॉर एग्जाम्पल रिले रेस सीरियल नंबर 12 4 into 100 meters race means there are 4 participants and each and everyone has to run 100 meters. हर किसी को 100 मीटर जब वो क्रॉस करेगा एंड ही हैव टू पास हिज बैटन, वो अपनी छड़ी पास करनी है दूसरे एथलीट को. आफ्टर दैट 100 meters that very person will run. After that he has to pass his baton to next person को. 4 persons are involved. Number 13 that is called 4 into 400 relay meters को 1600 की होती है. 4 into 400 meters relay race. 4 into 400
4x400 relay race mean in which there are 4 participants. Each participant has to run 400 meters. After that, 14 is the steeplechase run, 3000 meter. It's only for men. steeplechase run means इसमें water jumps होते हैं और भी hurdles होते हैं. After that, 3000 meters.